Hello children, today's our topic is Attila, chapter 10 from the English literature book of DAB class 6, written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is an Indian novelist and short story writer best known for his Malgudi Days and Swami and Friends. His award-winning novel, The Guide, has turned into an acclaimed movie. Children, our today's topic Attila is an extract from his Malgudi days. Now let me introduce you with the main characters of the story. So first of all, I would like to introduce you with the central character of the story, Attila, a white dog. Other main characters of the story are the householders mentioned in the story as father and mother, the youngest boy of the family and the eldest son, and Ranga the thief. Some other characters are the postman, bill collector, vendors, and friends. So, without wasting time, let's move to our topic Attila, a very interesting story. Now, read the story of a watchdog Attila who is anything but dangerous. चिल्ड्रन एनीथिंग बट डेंजरस मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ डेंजरस। मतलब इस स्टोरी में हम लोग जो वाइल्ड डॉग एटिला के बारे में पढ़ेंगे वो एकदम भी डेंजरस नहीं है। इन अ मूड ऑफ ऑप्टिमिज्म दे नेम्ड देयर डॉग अटीला। व्हाट दे वांटेड ऑफ अ डॉग वाज स्ट्रेंथ एंड फाइट। बड़ी ही उम्मीदों के साथ उन्होंने अपने डॉग का नाम रखा अटीला, और वो अपने डॉग से जो चाहते थे वो ये था कि वो शक्तिशाली यानी ताकतवर हो और वो एक फाइटिंग डॉग यानी लड़ाकू डॉग हो। चिल्ड्रन, इन हिस्ट्री एटिला वॉज द किंग ऑफ हुन्स who reigned over a large empire. He is famous for his bravery, his strength, and his tactics in military. And this was the very reason for naming the watchdog Attila. The immediate reason for buying him was a series of housebreakings and thefts in the neighborhood, and our householder decided to put more trust in a dog than in the police. अटीला को खरीदने का मेन रीज़न यानी तत्कालीन कारण जो था वो ये था कि उस समय हमारे पड़ोस में घर तोड़ के घुसना और चोरी करना, ताला तोड़ना, इन सब घटनाओं की जैसे कतार लग चुकी थी। मतलब हमारे पड़ोस में कई सारी ऐसी घटनाएं हो रही थी और हमारे घर वालों ने पुलिस से ज़्यादा एक डॉग पे विश्वास रखने का तय किया। द पपी वॉज ओनली अ कपल ऑफ मंथ्स ओल्ड and they were sure in 6 months he would be something to be feared and respected. वो डॉग सिर्फ कुछ महीनों का था, यानी उसकी उम्र सिर्फ कुछ महीने की थी, और वो घर के लोग निश्चित थे कि कुछ ही महीनों में ये ऐसा हो जाएगा जिससे सब डरेंगे और इसकी इज्जत करेंगे। But as time passed, Attila showed a love of humanity and a gentle behavior that was something unexpected. He stood up 20 inches high and had a large frame. But that was not all. पर जैसे जैसे समय बीतते गया, अटीला के अंदर मानवता के प्रति प्यार और शांत भद्र व्यवहार स्पष्ट होने लगा, जो कि एकदम भी एक्सपेक्टेड यानी प्रत्याशित नहीं था, क्योंकि सभी तो चाहते थे कि वो एक फाइटर और स्ट्रॉन्ग डॉग बने, लेकिन वो तो एक फ्रेंडली डॉग बन रहा था। वो 20 इंच लंबा था और अच्छा खासा बड़ा था, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। A variety of people entered the gates of the house every day. Postmen, bill collectors, vendors, and friends. All of them were warmly received by Attila. They only had to stop and smile, and Attila would melt and become best of friends. कई तरह के लोग रोज इस घर के दरवाजे से अंदर आते थे, जैसे कि पोस्टमैन, बिल कलेक्टर, फेरी वाले और दोस्त, लेकिन अटीला उनका काफ़ी गर्मजोशी से स्वागत करता था। उन्हें सिर्फ इतना करना होता था कि वो अटीला के सामने रुके और स्माइल दें, और इतने पर ही अटीला का दिल पूरा मेल्ट यानी पिघल जाता था और उनका
वो काफ़ी अच्छा दोस्त बन जाता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच. They thought it rather a shame. Somebody comes and steals the flowers in the garden and Attila won't do anything about it, complained the mother. He has better business to do than catch flower thieves, replied the youngest boy, always the defender of the dog. Well, what is that better business? He doesn't sleep all night, mother. I have often seen him going round the house and watching all night. घर के लोगों को एटिला का ये व्यवहार कोई खास पसंद नहीं था, उन्हें बल्कि ये शर्मिंदगी की बात लगती थी। माँ शिकायत करते हुए कहती हैं, कोई भी गार्डन में आके फूल चोरी करके चला जाता है और एटिला इसके बारे में कुछ नहीं करता। तब घर के सबसे छोटे लड़के ने, जो हमेशा एटिला का बचाव करता था, जवाब दिया कि फूल चोरी करने वालों को पकड़ने के बजाय एटिला के पास कुछ बेहतर काम है। तब माँ ने कहा, अच्छा बताओ क्या है वो बेहतर काम? तब उस लड़के ने कहा, माँ वो रात भर सोता नहीं, मैंने कई बार उसे देखा है। रात भर वो पूरे घर का चक्कर लगाते रहता है और नज़र रखता है। Oh really? I am quite alarmed to hear that, said the mother. Please lock him up in a room at night. Otherwise he may call in a burglar and show him around. अब माँ कहती हैं, ये सुन के मैं तो काफ़ी चौंक गई। इसको प्लीज़ रात के समय पे रूम में लॉक करके रखो, नहीं तो ये किसी दिन चोर लुटेरे को बुला के पूरा घर दिखा देगा। He is the most noiseless dog I have ever seen in my life, said the father. The youngest boy at home did not like this, but the dog justified its criticism that very night. और पापा ने कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में जितने डॉग देखे हैं, ये डॉग उनमें सबसे ज़्यादा नॉइजलेस यानी शांत है। चिल्ड्रन, क्रिटिसिज्म मीन्स गुड और बैड ओपिनियन। उस छोटे लड़के को अपने पापा की ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उस डॉग ने उसी रात उसके बारे में लोगों की जो राय थी उसे सही साबित कर दिया। रंगा, a thief, lived in a hut 3 miles from the town. At nights he visited the town and broke into the houses to steal valuables. That night, Ranga broke into Attila's house. He searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick up. रंगा नाम का एक चोर शहर से 3 माइल की दूरी पे एक झोपड़ी में रहता था। रात को वो शहर में आता और घरों में घुस के उनके कीमती सामान चोरी करता। उस रात रंगा अटीला के घर में घुसा। उसने घर के सारे ट्रंक यानी बक्से और अलमारियों में खोजा और वो जितना उठा सकता था उतनी ज्वेलरी और कीमती चीज़ों की उसने एक अच्छी खासी पोटली बना ली। He was about to go out when he saw Attila standing in front and looking up at him. Ranga thought that his end has come. He expected the dog to bark, but to his surprise, Attila did not bark. He waited for a moment and then licked Ranga's hands and rolled his eyes. Ranga whispered, I hope you are not going to bark. Don't worry, I am not that sort. The dog tried to say. The burglar stroked his head. वो जाने ही वाला था कि उसने देखा अटीला सामने खड़ा है और उसकी ओर देख रहा है। रंगा ने सोचा कि उसका अंत नज़दीक है, यानी उसका सारा खेल ख़त्म। उसे लगा कि ये डॉग अभी भौंकेगा और वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी हैरानगी की हद हो गई जब एटिला नहीं भौंका। उसने कुछ पल इंतज़ार किया, फिर रंगा के हाथों को चाटा, अपनी आँखों को घुमाया। रंगा फिसफिसाते हुए बोला, मैं आशा करता हूँ कि तुम भौंकोगे नहीं। अटीला जैसे कहना चाहता था कि घबराओ मत, मैं उस तरह का नहीं हूँ। चोर ने अटीला का सर सहलाया। He opened the gate and went out. To his surprise, the dog followed him. Attila's greatest ambition in life was to wander in the streets freely. Now he had a good opportunity to fulfill his greatest desire. रंगा ने दरवाज़ा खोला और बाहर चला गया। वह हैरान हो गया ये देख के
कि वो डॉग उसके पीछे पीछे आ रहा था। एटिला की जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा ये थी कि वो सड़कों में फ्रीली घूमे, और अब उसके पास मौका था अपनी इस सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने का। Attila liked Ranga so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. This sort of companionship got on Ranga's nerves. He requested the dog to leave him, but the dog, unmoved, sat before him with his eyes glued on Ranga. अटीला को रंगा इतना पसंद आया था कि वो रंगा को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह का साथ रंगा को काफ़ी परेशान कर रहा था। रंगा ने उस डॉग को रिक्वेस्ट किया कि वो उसको छोड़ के चला जाए, पर अटीला हिला नहीं। उसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए उसके सामने बैठ गया। मीनवाइल इन द बंगलो, Attila's disappearance created a sensation. "Didn't I tell you," said the mother, "to lock him up? Now some burglar has gone away with him. What a shame! We can hardly tell this to anyone." इधर पीछे से घर पे इतनी देर से अटीला की गैर मौजूदगी से एक सेंसेशन पैदा हो गई। माँ ने कहा, "क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं कहा था कि इसको लॉक करके रखो? अब वो कोई बर्गलर के साथ चला गया है। कितनी शर्म की बात है। हम लोग शायद ही ये किसी को बता पाए। आई थिंक वी शुड आफ्टर ऑल थैंक दैट थीफ फॉर टेकिंग अवे दैट डॉग," सेड द फादर. "ही मे कीप द ज्वेल्स एज अ रिवार्ड फॉर टेकिंग हिम अवे." फादर ने कहा, "मुझे लगता है उस डॉग को ले जाने के लिए हमें तो बल्कि उस चोर का शुक्रगुजार होना चाहिए, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि वो हमारे ये गहने कीमती चीज़ें भी रख सकता है उस डॉग को ले जाने के रिवार्ड यानी पुरस्कार के तौर पे." A week after the disappearance of Attila, the eldest son of the family was strolling in the lanes of the city. There he saw Attila trotting behind Ranga on the road. Children, strolling means walking in a slow way, and trotting means running fairly fast. अटीला के गायब होने के एक हफ्ते बाद घर का सबसे बड़ा लड़का शहर की एक गली में धीरे धीरे चल रहा था। उसने वहां पे देखा अटीला रंगा के पीछे दौड़ रहा था। "Hey!" shouted the young man, at which Ranga turned and thought that the man was shouting at him and broke into a run. Attila, who knew that Ranga wanted to desert him, ran after him. He didn't want to lose his friend's company at any cost. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and blocked his way. Ranga stumbled over him and fell. लड़के ने आवाज़ लगाई, "हे!" जिस पे रंगा मुड़ा और सोचा कि वो उसके ऊपर चिल्ला रहा है, और ये देख सुन के रंगा बेइंतहा सा दौड़ने लगा। अटीला, जिसे पता था कि रंगा उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वो कोई भी कीमत पे अपने दोस्त यानी रंगा का साथ छोड़ना नहीं चाहता था, और इस वजह से वो इतनी तेज दौड़ा कि वो रंगा को ओवरटेक करके उसके सामने उसका रास्ता रोक के खड़ा हो गया। रंगा को अटीला से ठोकर लगी और वो गिर गया। As he rolled on the ground, a piece of jewelry flew from his hand which he was going to sell. The young man recognized the jewels and pounced on Ranga and sat down on him. A crowd collected and the police appeared on the scene. जैसे ही वो जमीन पे लुढ़का, उस ज्वेलरी में का एक टुकड़ा उसके हाथ से फिसल गया जो वो बेचने जा रहा था। उस लड़के ने ज्वेल्स को पहचान लिया और कूद के रंगा के ऊपर चढ़ के बैठ गया। भीड़ जमा हो गई और वहाँ पे पुलिस भी आ गई। Attila was the hero of the day. Even the lady of the house softened towards him. Whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective. He is too deep for words. अटीला उस दिन का हीरो बन गया। यहाँ तक कि घर की जो लेडीज़ जो मालकिन थी उनका भी बर्ताव अटीला की ओर काफ़ी सॉफ्ट यानी नर्म हो गया। उन्होंने कहा,
जो भी हो, अटीला के बारे में एक बात तो कहनी ही पड़ेगी कि वो बहुत ही चालाक डिटेक्टिव है, यानी चालाक जासूस है। उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। It was good that Attila had no power of speech, otherwise he would have told the truth and lost the position of a hero. ये अच्छा हुआ कि अटीला को हमारी तरह बोलने की क्षमता नहीं है, नहीं तो वो सच्चाई बयां कर देता और लोगों की नज़रों में हीरो का जो स्थान उसे मिला था उसे वो खो देता। This was the full explanation of the story. I think this video will help you to understand the story more clearly, and if so, then don't forget to like, share and comment. And please subscribe my channel if till now you have not subscribed. And press the bell icon so that you can be notified whenever I upload a new video. Thanks for watching. बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।